Students, in the previous class we were discussing about the decisions of financial management. There are three decisions of financial management. One is financing decision, investment decision, and dividend decision. We discussed about financing decision, which talks about where to invest the amount if you have a surplus funds. अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इफ़ यू आर इन नीड ऑफ फंड, कहाँ से हम फंड्स रेज करेंगे. दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल डिसीजंस. नाउ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी suppose if you have sufficient funds, if you have a surplus funds with you, like say an example, if you have 50,000 with you in your pocket now, what you will do with this 50,000? Where do you invest? What you are going to do it? I'll take one example, the best example to explain you. Say an example, you are a salaried employee earning 20,000 per month. अगर आप salaried employee हो, 20,000 per month आपका salary आ रहा है. And everybody knows when you get a salary it will have a fixed commitments. सारे commitments fixed है. अपना रेंट पे करना, कन्वेंस के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, ग्रोसरी के लिए, सब कुछ फिक्स्ड है. एवरी मंथ अपना रूटीन है. सपोज़ वन फाइन डे आपने जब ऑफिस गया, ओनर ने आपको 20,000 रुपीज़ का बोनस दे दिया, बोला है जॉब बोनस ले लो. 20,000 तुम्हारा सैलरी के साथ 20,000 एक्स्ट्रा बोनस दे दिया. Now the question arises, this 20,000 are free now, there are no commitments, so what you do with this 20,000? जब आपको मिल गया एक्स्ट्रा अमाउंट, उसका तो कोई कमिटमेंट्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो देर आर लॉट ऑफ लाइक आइडियाज़ यू मे गेट इन योर माइंड कि एकदम 20,000 आया तो फर्स्ट सोचेंगे कि शॉपिंग करूँगा, या तो सोचेंगे कि नहीं मैं सेविंग करूँगा बाई इन्वेस्टिंग इन शेयर्स आर समवेयर, आर यू वांट टू बाई ए प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, या किसी को चैरिटी देना चाहते हो. सो दिस आर ऑल द आइडियाज़ कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू हैव 20,000 इन योर excess amount. So now you have to decide the right choice for your surplus amount. जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, you have to decide what would be the correct idea for this, correct plan for it. That taking that kind of decision is called investment decision, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो. मतलब इस 20,000 प्रेजेंटली यू आर नॉट नीड ऑफ 20,000. दिस इज अ सरप्लस फंड फॉर यू, बट you have an option that you can invest it for the future purpose. So आप जो डिसीजन लेंगे यहाँ पे, you have to select the best alternative investment idea option. That is what investment decisions as per this financial management. So similarly in a business organization also, if you have the surplus funds with you after payment to everybody, then the organization has to plan where to invest this surplus fund. If you don't invest this surplus fund anywhere, this may result into a ideal cash. इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास दो आइडियाज़ हैं. इट मे बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म और इट मे बी फॉर ए शॉर्ट टर्म. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर ए शॉर्ट टर्म, वी कॉल दैट एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे कैपिटल बजटिंग. सो आइदर बाय यूजिंग कैपिटल बजटिंग or by using the working capital management, we decide where to invest. Say an example, capital budgeting के बारे में, long term के बारे में अगर सोचें, तो suppose say an example you have to buy a machinery. Okay, you have to buy a machinery. अब ये मशीनरी हमें सोचना चाहिए कि कौन सा मशीनरी हमें सूटेबल रहेगा, कि ऑटोमेटेड, या हम ऑटोमेटेड लेंगे या मैनुअली ऑपरेटेड लेंगे. सो विच काइंड ऑफ मशीनरी यू वांट टू बाय.
So this may help you in identifying what decision we can take. So these kind of decisions are called as capital budgeting decisions. So identify the best source for your investment is what you call investment decisions. So for taking this kind of decision, what factors will influence? The first thing important here is cash flow of the project. आप जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो बेस इंपॉर्टेंट है. अगर कैश फ्लो ऑफ वन प्रोजेक्ट इज़ मोर देन द अदर प्रोजेक्ट देन डेफिनेटली द फर्स्ट वन विल प्रेफर टू गो. सो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट में हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कैश फ्लोस ज़्यादा मिल रहे हैं. से एन एग्जाम्पल यू हैव टू प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान्स. वन में आपको एवरी ईयर आपको 10,000 रिटर्न आ रहा है, एवरी ईयर 10,000. लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में आपको एवरी ईयर 12,000 आ रहा है. सो ऑब्वियसली विल गो विथ 12,000 नॉट विद 10,000 बिकॉज एवरीबडी वांट्स मोर मनी. सो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट जो ज़्यादा मिल रहा है सो उसी के इनफ्लोस पे हम डिपेंड होते हैं. सो पहले कैश फ्लो इज़ द फर्स्ट फैक्टर. नाउ द सेकेंड फैक्टर हियर इज़ रेट ऑफ रिटर्न. सपोज से एक प्रोजेक्ट में आपको एक प्रोजेक्ट में मतलब एक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको 10,000 फॉर 10 ईयर्स आ रहा है. 10,000 10,000 10,000 10 ईयर्स आएगा. दूसरे प्रोजेक्ट में कैश फ्लो दो इट इज़ 12,000 बट यू आर गेटिंग ओनली फॉर 5 ईयर्स. सो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न इन द सेकेंड प्रोजेक्ट वुड बी लेस एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट वुड बी मोर. सो इसलिए हम सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो जिस प्रोजेक्ट में हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा रहेगा दैट प्रोजेक्ट विल बी प्रेफरिंग. से कुछ प्रोजेक्ट में इनफ्लोस ज़्यादा आते हैं और इन्वेस्टमेंट कम रहता है तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा. कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देना पड़ता है और रिटर्न कम आता है सो उसमें रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा. सो रेट ऑफ रिटर्न जहाँ ज़्यादा है उस प्रोजेक्ट को हम प्रायोरिटी देंगे. देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड मतलब कितना इन्वेस्टमेंट देना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट. रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर हमारे पास 80,000 है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी हैव गॉट 2 प्रोजेक्ट्स टू टेक अप. एक में 1 लाख और दूसरे में 80,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए. सो एज अवर फंड्स आर लिमिटेड 80,000 ही हैं सो वी हैव टू गो विद द सेकेंड प्रोजेक्ट नॉट विद द फर्स्ट प्रोजेक्ट. Say I have 50,000 of cash in my pocket now. I have 50,000 of cash in my pocket now. I've got 2 projects for options we have. एक प्रोजेक्ट में मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना होगा इस प्रोजेक्ट को टेकअप करने के लिए, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट मेरा 50,000 है जिसको मैं टेकअप कर सकता हूँ. सो ऑब्वियसली वेयर माई इन्वेस्टमेंट सपोज फॉर द सेकेंड प्रोजेक्ट सो आई नीड टू गो विद द सेकेंड प्रोजेक्ट ओनली, not with the first one where I don't have sufficient funds to invest. So these are the major factors which influence our investment decisions. Now to talk about the last one, that is dividend decisions. What do you mean by dividend decisions? I have already explained you that in every organization first the profit whatever you get is called EBIT or PBIT. From this we have to deduct the interest payable to debenture holders or money lenders, those who have lended money. Then this is called EBT or PBT, जिसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं. whatever comes is called PAT or EAT. एंड इसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज़ फिक्स्ड और जो भी बैलेंस आएगा वी कॉल दैट एज अर्निंग्स अवेलेबल टू equity shareholders. Earnings available to equity shareholders. From this we bifurcate into 2 parts. A portion of this amount will be paid as a dividend and the other portion will pay as a retain as a investment in the business. These retained earnings are meant for only future reinvestment purpose, and the dividend is the income for the shareholder which we give as a return to them on their capital. So now the question arises, out of the EAESH, that is earnings available to equity shareholders, how much portion we are going to pay as a dividend, how much we are going to pay, that decision is called
डिविडेंड डिसीजन। बिकॉज सिंपल लॉजिक है कि अगर ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर को दे देंगे तो रिटेन करने में कम अमाउंट रहेगा और इन्वेस्ट करने के लिए कम अमाउंट अवेलेबल रहेगा। बिकॉज रिटेन अर्निंग्स आर मीन्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट। सो जब रिटेन अर्निंग्स आर मीन्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट, अगर डिविडेंड ज़्यादा चले गया तो रिटेन अर्निंग्स कम रहेगा और इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शंस कम रहेंगे। इसलिए हमें सोचना हुआ कि डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि डिविडेंड कितना पेमेंट करना चाहिए। सो लुक इनटू द अदर फैक्टर्स, दैट फैक्टर्स व्हाट एवर वी हैव हियर टू डिसाइड इट। एक तो है अर्निंग्स। अगर कंपनी का अर्निंग्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वी पे मोर रिटर्न्स। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि हम कंपनी का स्टेबिलिटी एवरी ईयर सेम डिविडेंड पेमेंट करने का पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं क्या। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी का अगर फ्यूचर में ग्रो होने का प्रॉस्पेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, तो इट्स बेटर टू रिटेन मोर अमाउंट एंड गिव लेस डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अगर हमारा कंपनी का कोई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं दिख रहा है इन फ्यूचर, एंड इफ देर आर नो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन नियर फ्यूचर, बेटर टू पे दी एंटायर अमाउंट एज ए डिविडेंड टू शेयर होल्डर। कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारा कैश फ्लो रेगुलर है, ज़्यादा है, तो बेटर टू गो फॉर डिविडेंड मोर, because whatever cash flow, whenever there is a requirement for investment, the cash flows are regular, so it will be available. और प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स कुछ लोग रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं कि करंट इनकम, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स इज़ ए फ्यूचर इनकम। आज रिटेन करेंगे, उसको री इन्वेस्ट करेंगे, फिर फ्यूचर में इनकम आएगा। सो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं, हम अगर ओल्ड एज वाले हो या वुमेन हो, so basically if they are in need of funds, if that is a regular income for them, then definitely they'll prefer for current income only and they don't want the future income, so dividend ज़्यादा पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। और टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन ज़्यादा रहा तो कम डिविडेंड, टैक्सेशन कम रहा तो ज़्यादा डिविडेंड। और इसी तरह से द बेसिक कंस्ट्रेंट्स, ये सब हमारे factors which influences our dividend decisions. So today I'll stop here for this, and tomorrow I'll be discussing about financial planning and what are the plans we have in this and what factors will influence the financial plan. So that would be our next concept. In the same concept I'll discuss about the capital structures also. That would be the last point of your financial management. So see you in tomorrow's class.